let's start with the third set. The schematic diagram below shows 12 rectangular houses in a housing complex. House numbers are mentioned in the rectangles representing the houses. So A1, B1, C1, these are the houses. These are the names of the houses. The houses are located in 6 columns, column A through column F. So basically in column A, the houses are named as A1, A2. In column B, they are named as B1, B2, and so on. And 2 rows also, row 1 and row 2 as indicated in the diagram. The houses are divided into 2 blocks. Block XX is the left one, block YY is the right one. The diagram also shows 2 roads. दोनों ब्लॉक्स के बीच में आपको एक रास्ता दिखेगा, रोड, एंड नीचे एक और रास्ता दिखेगा, right? So these are the 2 roads they're talking about. One passing in front of the houses in row 2 and another between the 2 blocks. Okay, so they have described the diagram in the first paragraph, right? Moving on, some of the houses are occupied. Now this is where they have started giving you parameters, right? Some of the houses are occupied, the remaining ones are vacant and are the ones available for sale. तो पहला जो पैरामीटर हमें मिला है वो पैरामीटर है कि हाउस या तो ऑक्यूपाइड हो सकता है या फिर वेकेंट हो सकता है. अगर वेकेंट होता है तो ही वो सेल के लिए जाएगा, अदरवाइज नहीं, राइट? सो दैट्स द फर्स्ट पैरामीटर. Then the road adjacency value of a house. So that's the next parameter. The road adjacency value of a house is the number of its sides adjacent to a road. तो कोई भी एक पर्टिकुलर हाउस, उसके कितने सारे साइड्स रोड के साथ एडजेसेंट हैं, that will give you the road adjacency value. So for our convenience, let's name it as RAV for now. RAV बता देते हैं. तो हर हाउस का कोई ना कोई RAV वैल्यू होगा, तो उसके जितने सारे साइड्स रोड के साथ कनेक्टेड है, दैट्स द RAV. They have given an example also. For example, the road adjacency values of C2, F2 and B1 are 2, 1 and 0 respectively. तो अगर मैं C2 देखूं, C2 के 2 साइड्स रोड के साथ एडजेसेंट है, so C2 will have an RAV of 2. F2 का एक ही साइड रोड के साथ कनेक्टेड है, so F2 will have an RAV value of 1. एंड B1 का कोई भी साइड रोड के साथ कनेक्टेड नहीं है, B1 इज कंप्लीटली इनसाइड, तो उसका RAV वैल्यू होगा 0. तो एक बात यहां से तो हमें समझ में आ गया कि वी कैन डिटरमाइन द RAV वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी हाउस. दैट इज कांस्टेंट, दैट वोंट चेंज. ओके, फेयर इनफ. नेक्स्ट इज the neighbor count of a house. So that's the third parameter they have come across, the neighbor count. तो neighbor count अगर होता है उसको भी हम लोग कुछ नाम दे देते हैं for our convenience. Let's say NC. The neighbor count of a house is the number of sides of that house adjacent to occupied houses in the same block. Now that is where a variable comes into the picture. क्योंकि इन्होंने NC neighbor count इसको डिफाइन कैसे किया है कि उस घर के साथ कौन कौन से घर, उस घर के कितने सारे साइड्स के साथ ऑक्यूपाइड घर एडजेसेंट है. दैट्स कॉल्ड द नेबर काउंट. लेट्स टेक एन एग्जांपल इन चेक. फॉर एग्जांपल, E1 and C1 कैन हैव द मैक्सिमम पॉसिबल नेबर काउंट्स ऑफ 3 and 2 रेस्पेक्टिवली. E1 के बारे में अगर हम लोग देखें, E1 के साथ कौन कौन से घर एडजेसेंट हैं, 1, 2, 3. लेकिन फिलहाल हमें पता नहीं है कि इनमें से ऑक्यूपाइड कौन कौन सा है. अगर हम लोग मान लेते हैं कि तीनों ही ऑक्यूपाइड हैं, इन दैट केस E1 विल हैव अ नेबर काउंट ऑफ 3. दैट्स द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी. तो 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, चारों पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं. सिमिलरली अगर हम लोग C1 के रिस्पेक्ट में देखें, तो C1 के साथ 2 ही घर एडजेसेंट हैं, सो C1 विल हैव अ नेबर काउंट ऑफ 2, राइट? तो मैक्सिमम नेबर काउंट ऑफ 2 मतलब 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है. All are possible. Okay, so that was our third parameter for a given house. Then they have come across base price. So that's the fourth parameter they have added, right? Price of a vacant house. The base price of a vacant house is rupees 10 lakhs if the house does not have a parking space. तो अगर उस घर में कोई parking space नहीं है, in that case the base price of the house will be 10 lakhs.
और अगर पार्किंग स्पेस है तो इट विल बी 12 lakhs. So 10 lakhs and 12 lakhs, these two important information are there, right? So that's the fourth parameter. Then price में एक और चीज आता है, quoted price. Quoted price which is based on a formula. That formula is based on the base price plus 5 into RAV plus 3 into NC, right? तो इससे पहले जो भी पैरामीटर्स थे उनके बेसिस पे देयर इज अ कोटेड प्राइस फॉर ईच हाउस गिवन. तो इतना सारा पैरामीटर, हमारा एक ही हाउस के लिए इतने सारे पैरामीटर्स हैं. तो बिफोर गोइंग इनटू द एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो सॉल्व करने के लिए दिया है, उससे पहले बाकी पूरा इंफॉर्मेशन था आपको सेट समझाने के लिए कि कहानी है क्या, राइट? किस तरह का स्ट्रक्चर है. तो यहां से आपके दिमाग में कैसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, सो दैट ध्यान में रखिएगा बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है इसमें. तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आप कहीं पे बीच में खो ना जाओ. तो एक चीज तो आपको समझ में आ रहा है कि डायग्राम जो भी है वो अगर इस तरह का ही रहता है तो मेरे लिए बेहतर है. लेकिन नॉट ओनली दिस, इसके साथ कुछ ऐड करना होगा. क्या ऐड करना होगा कि हर घर में जितने सारे पैरामीटर्स हैं वो सारे पैरामीटर्स मुझे हर घर के अंदर दिखना चाहिए, राइट? मतलब हर घर में आपको आरएवी वैल्यू दिखना चाहिए, एनसी वैल्यू दिखना चाहिए, उसका बेस प्राइस कितना है, वो वेकेंट है या ऑक्यूपाइड है, उसका कोटेड प्राइस कितना है, या फिर उसमें पार्किंग स्पेस है या नहीं है. ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको एक हाउस के एक ब्लॉक में दिखना चाहिए, राइट? तो उस तरह का हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं फिलहाल. We'll move into the questions also, but उससे पहले बेसिक डायग्राम एक बना लेते हैं. तो आई थिंक वी शुड कीप द सीक्वेंस सेम, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए. सो लेट्स से दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, जहां नीचे से ये रास्ता जाता है, एंड ये बीच वाला रास्ता है, राइट? दिस इज नेम्ड एज ब्लॉक XX, दिस इज YY, एंड दिस विल बी रो 1, दिस विल बी रो 2, एंड इसके अंदर आपको 3 अलग अलग घर मिलने चाहिए. Right? And let's name the houses. So this is A1, this is B1, C1, D1, E1 and F1, A2, B2, C2, D2, E2 and F2. These are all the houses. यहाँ पे हमें कौन कौन से पैरामीटर्स के वैल्यूज चाहिए? We need the RAV value, we need the NC value as of now. इसके ऊपर डिपेंड करके फिर हम लोग निकालेंगे बेस प्राइस कितना है, पार्किंग स्पेस है कि नहीं, एंड कोटेड प्राइस कितना है, वो सब, राइट? तो सबसे पहले फिलहाल हर एक के लिए आरएवी एंड एनसी तो लिख ही लेते हैं. उसमें थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर आप अच्छे से बना पाओगे. यू वोंट मिस आउट ऑन एनी वैल्यू. ओके, सो हमने हर एक के लिए आरएवी एंड एनसी वो अलग अलग कर दिया है. अब हमें ऑलरेडी पता है आरएवी इज फिक्स्ड फॉर एवरीबॉडी, राइट? रोड एडजेसेंसी वैल्यू अगर मैं देखूं A1 एंड B1, दीज आर द टू हाउसेस जहां पे रोड एडजेसेंसी वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ कोई रोड अटैच्ड है नहीं. तो यहां पे 0 बिठा देते हैं एंड एक सर्कल भी मार देते हैं. जो भी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होगा, विल बी श्योर ऑफ दैट वैल्यू, उस पर हम लोग मार्क कर देंगे. तो A1 एंड B1 विल हैव 0, E1 and F1 will also have 0 RAV. C1 will have RAV of 1, D1 will have RAV of 1, A2 will have RAV of 1, B2
E2 and F2, all of them will have RAV of 1. Only C2 and D2 they have RAV of 2, राइट? इनके साथ दो अलग अलग रास्ते एडजेसेंट है, तो RAV तो हमारा खत्म हो गया. नाउ बाकी सारा इंफॉर्मेशन नेबर काउंट अगर देखा जाए दैट डिपेंड्स ऑन क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, राइट? सो वी हैव टू गो टू द इंफॉर्मेशन. उससे पहले एक बार जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस भी देख लेंगे, राइट? पहला क्वेश्चन है ब्लॉक XX में कितने सारे वेकेंट हैं, तो वेकेंट ऑक्यूपाइड उसका पूरा लिस्ट मुझे निकालना होगा. विच आर द फॉलोइंग हाउसेज आर डेफिनेटली ऑक्यूपाइड, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन वेकेंट एंड ऑक्यूपाइड. Which of the following options best describes the number of vacant houses in row 2? Row 2 में number of vacant houses again depends on number of vacant houses and occupied houses. What is the maximum possible quoted price for a vacant house in column E? तो column E मतलब second block, उसका information हमें अलग से चाहिए. Which house in block YY has parking space? तो पार्किंग स्पेस का मतलब है उस हिसाब से उसका बेस प्राइस चेंज होगा. सो एक बार हमने बस देख लिया कि कौन कौन सा चीज. व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, वो पूरा डायग्राम बनाते टाइम अगर हमें दिखता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, सो वी कैन डायरेक्टली आंसर दैट क्वेश्चन, राइट? ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है, राइट? इंफॉर्मेशन में सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है, द मैक्सिमम कोटेड प्राइस ऑफ अ हाउस इन ब्लॉक XX इज 24 lakhs. उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है? ब्लॉक XX में कोई भी एक घर उसका मैक्सिमम कोटेड प्राइस है 24. तो हमें यह नहीं पता कि उसमें पार्किंग स्पेस है या नहीं है. सो अकॉर्डिंगली देयर विल बी टू पॉसिबिलिटीज कमिंग अप, राइट? वी ऑलरेडी नो दैट quoted price is equal to base price plus 5R plus 3N. We already know this much. So there are two possibilities according to the base price. या तो 10 होगा या 12 होगा. तो quoted price अगर 24 होता है तो 10 plus 5R plus 3N. That's one possibility. In that case, we get 5R plus 3N is equal to 14. अब हमें ऑलरेडी पता है रोड एडजेसेंसी वैल्यू, उसका वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है 2, राइट? 0, 1 या 2, दीज आर द पॉसिबिलिटीज. सिमिलरली नेबर काउंट मैक्सिमम हो सकता है 3, 0, 1, 2, 3, उसके आगे नहीं जाएगा. तो वैल्यूज एक बार बिठा के देख लेते हैं कौन सा लागू होता है. अगर R का वैल्यू हम लोग 0 प्लेस करते हैं तो 3N विल बी इक्वल टू 14, विच इज नॉट पॉसिबल. R का वैल्यू अगर हम लोग 1 प्लेस करते हैं, in that case I'll have 3N is equal to 9, which is possible. In that case I'll have N is equal to 3, definitely a possibility. R का वैल्यू अगर हम लोग 2 प्लेस करते हैं, we'll have 3N is equal to 4, which is again not possible. So this is definitely one of the possibilities. Now let's move on to the next one. कि 24 is equal to 12 plus 5R plus 3N. अगर ये होता है, in that case what can we say? We can say that 5R plus 3N is equal to 12. Now again let's start placing the values of R and N. R का वैल्यू अगर मैंने 0 कर दिया तो N का वैल्यू becomes 4, which is not possible. N can be a maximum of 3. R का वैल्यू अगर 1 कर दिया 3N becomes 7, again not possible. R का वैल्यू अगर 2 कर दिया 3N becomes 2, अगेन नॉट पॉसिबल. R का वैल्यू 3 तो कर ही नहीं सकते, फिर तो नेगेटिव आ जाएगा. मतलब दिस इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल. अगर ये नॉट पॉसिबल है तो ब्लॉक X में कौन से घर के बारे में ये लोग बोल रहे हैं जिसका RAV 1 है और जिसका नेबर काउंट 3 हो सकता है? ओके, इफ आई लुक एट द नेबर काउंट्स ऑफ ईच एंड एवरी हाउस, द पॉसिबल नेबर काउंट्स, जैसे A1 के मैक्सिमम 2 नेबर्स हो सकते हैं, तो आई कैन राइट 2 or 1 or 0. These are the possibilities. B1 can have 3 neighbors maximum. So I can write 3 or 2 or 1 or 0. C1 के लिए again 2. So ये मिरर इमेज चलता रहेगा, राइट? किसी भी ब्लॉक में, किसी भी हाउस में. So let me quickly write it. यहां पे 3, 2, 1 या 0, यहां पे 2 या 1 या 0.
सेम यहाँ पे 2 या 1 या 0, यहाँ पे 3 2 1 0 2 1 0 2 1 0 3 2 1 0 2 1 0. These are all the possibilities. अब यहां से आप सोचिए r का वैल्यू 1 एंड n का वैल्यू 3 आपको कहां दिख रहा है, कहां मिलने वाला है? आई थिंक दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी जहां पे आपको r का वैल्यू 1 n का वैल्यू 3 मिलेगा. सो रेस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज रिमूव देम, राइट? So what we got to know is this must be a vacant house. That's why it's for sale. It has a quoted price of 24 lakhs. And because the base price was considered to be 10, मतलब इसमें कोई parking space नहीं है. So I'll cross parking space here. I also got the information that this house has got 3 neighbors. तो 3 neighbors अगर हैं तो definitely this house will be occupied, this house will be occupied, this house will be occupied, then and only then it can have 3 different neighbors, which means these houses are not for sale, right? यहाँ पे कोई अलग से कोई values नहीं बैठेगा. But we don't know anything about R1 के जो बाकी दोनों हैं A1, C1, we don't have much idea about that. So this is all the information we could gather from the first part of the first point. Okay. Moving on to the second part. The minimum quoted price of a house in block YY is 15 lakhs. तो जैसे block XX में maximum दिया था, यहाँ पे minimum है. And one such house is in column E. Okay. Important information. तो block YY में E का जो कॉलम है E1 या फिर E2, इन दोनों में से किसी एक का कोटेड प्राइस 15 लाख है. अगेन आई विल डू द सेम थिंग, राइट? विल हैव टू डू द सेम थिंग. आई विल राइट 15 इज इक्वल टू 10 प्लस 5r plus 3n. That's a possibility. In that case, I'll have 5r plus 3n equal to 5. Let's write down the possible values of r and n also. r का वैल्यू अगर मैं 0 बिठाता हूं तो n r का वैल्यू 0 बिठाने से 3n becomes 5, which is not possible. If I place r is equal to 1, we'll have n is equal to 0. That's a possible solution, definitely. And इसके आगे तो हम लोग नहीं जा सकते. r का वैल्यू 2 करेंगे नेगेटिव आ जाएगा. Not possible. So this is definitely a possible solution. अगर ये होता है तो आप ध्यान में रखिएगा E1 या E2 में से किसका r वैल्यू 1 है? E2 का. So in that case the house having 15 lakhs will be E2. Okay. या फिर अगर 15 is equal to 12 plus 5r plus 3n होता है, in that case what can we do? 5r plus 3n is equal to 3. Let's write down the solutions also. अगर r का वैल्यू 0 कर देते हैं तो again we have a solution here. n is equal to 1. This is a possibility. r का वैल्यू अगर मैंने 1 कर दिया तो नेगेटिव आ जाएगा. नॉट पॉसिबल. तो दोनों पॉसिबल है. मतलब यहां से मुझे E2 मिल सकता है, यहां से मुझे E1 मिल सकता है. बोथ ऑफ देम आर इक्वली पॉसिबल, राइट? सो आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड देयर. नाउ इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन तो फिलहाल शायद हमें फर्स्ट पॉइंट से नहीं मिलने वाला है. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, द अदर पॉइंट्स. Row 1 has 2 occupied houses, one in each block. Okay. Row 1 has 2 occupied houses, one in each block. उसमें से block X का occupied house तो आपको already मिल चुका है. मतलब बाकी दोनों house vacant होंगे. That's for sure. Block YY में कोई एक house occupied है, उससे ज्यादा नहीं है. तो एक हाउस ऑक्यूपाइड है मतलब बाकी दोनों वेकेंट है. इस तरह का कुछ सिस्टम होगा. Which I think, if I remember correctly, gives me the answer for the first question. How many houses are vacant in block XX? Because we have the entire story for block XX, right? XX में हमें 1 2 3 वेकेंट हाउसेस ऑलरेडी दिख रहे हैं. मतलब आप जल्द से जल्द यहां पे 3 बिठा दो. This question is already answered, right? ओके. बाकी सब भी मोस्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ वेकेंट एंड ऑक्यूपाइड हाउसेस के ऊपर. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डिपेंडेंट ऑन दैट. कॉलम ई को लेके भी देयर इज अ क्वेश्चन, सो विल कम टू दैट. एंड देन ब्लॉक वाई वाई में पार्किंग स्पेस किस पे है
उसको लेके भी एक क्वेश्चन है. फिलहाल लेट्स मूव टू द इंफॉर्मेशन. First point, second part, we are already done with that. Second point is already done. Third point, both houses in column E, as I said, there was a question specifically on column E. So let's see. Both houses in column E are vacant. Very good. Each of column D and column F has at least one occupied house. Okay. This means column E के जो दो घर हैं, दोनों vacant है, दोनों for sale हैं. लेकिन किसका प्राइस कितना है वो हमें फिलहाल नहीं पता. वन ऑफ देम इज 15 lakhs. आई नो दैट, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियोज. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉलम डी एंड कॉलम एफ, इनमें से एटलीस्ट एक ऑक्यूपाइड होना ही चाहिए. कॉलम डी में एटलीस्ट एक ऑक्यूपाइड, कॉलम एफ में एटलीस्ट एक ऑक्यूपाइड, वो होना ही चाहिए. दैट्स द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट. नाउ वी ऑल्सो नो दैट ब्लॉक वाई में एक ऑक्यूपाइड रो 1 में तो आएगा ही पक्का, बिकॉज रो 1 में देयर वर टू ऑक्यूपाइड, वन इन ब्लॉक XX, वन इन ब्लॉक YY. तो YY में अगर एक ऑक्यूपाइड आता है तो वो कौन सा वाला होगा, दैट्स द क्वेश्चन आई हैव. सो इफ आई कंसीडर, लेट्स से इफ दिस वन इज ऑक्यूपाइड देन दिस वन विल बी वेकेंट, और द अदर वे अराउंड, ये अगर वेकेंट होता है तो दूसरा. तो ऐसे अलग अलग हम लोग पॉसिबिलिटीज लेके चेक करेंगे. उससे पहले कैन वी डू समथिंग अबाउट द 15 lakh थिंग? नो, आई डोंट थिंक सो. सो लेट्स कंसिडर, इफ आई कंसिडर दिस टू बी वेकेंट एंड दिस टू बी ऑक्यूपाइड, राइट. वी नो दैट कॉलम F1 में एटलीस्ट एक ऑक्यूपाइड तो होना चाहिए. तो अगर F1 में एक वेकेंट मुझे मिल जाता है तो दिस वन डेफिनेटली मस्ट बी ऑक्यूपाइड, राइट. ओके, इफ दिस वन इज ऑक्यूपाइड, F1 must have a neighbor count of 1, right. F1 must have a neighbor count of 1, that is F2. In that case F1 का quoted price कितना बनेगा, डिपेंड करता है, हमें पता नहीं है पार्किंग स्पेस है कि नहीं. सो अगेन दो अलग अलग वैल्यूज आएंगे. सो लेट्स फर्दर मूव ऑन विद द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन में और क्या दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज ओनली वन हाउस विथ पार्किंग स्पेस इन ब्लॉक YY. There's only one house with parking space in block YY. E1 definitely can take that. Can, I'm not sure. E1 definitely can take that. Okay. मान लेते हैं F1 जो है, F1 में अगर पार्किंग स्पेस होता है, अच्छा F1 जो हाउस है, आप सोचिए F1 हाउस का कोटेड प्राइस कितना आ सकता है. या तो 10 प्लस उसका RAV वैल्यू तो 0 है, नेबर काउंट 1 है, तो या तो 10 प्लस 3 आएगा या फिर 12 प्लस 3 आएगा. 10 प्लस 3 हो नहीं सकता क्योंकि वो 13 बन जाता है. इन्होंने तो बोला था ब्लॉक YY में 15 मिनिमम है. 12 प्लस 3 भी हो नहीं सकता बिकॉज वो 15 बन जाता है, एंड 15 वाला तो कॉलम E में है. दैट मीन्स F1 जो है वो आप वेकेंट रख ही नहीं सकते हो, उसमें आपको ऑक्यूपाइड रखना ही होगा. ओके, तो अगर आपको F1 ऑक्यूपाइड रखना है तो डेफिनेटली आपको D1 वेकेंट रखना होगा. एंड अगर आप D1 वेकेंट रखते हो तो आपको D2 ऑक्यूपाइड रखना ही होगा. बट आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट F2. F2 वेकेंट रहेगा या ऑक्यूपाइड रहेगा, आई डोंट नो दैट येट, right. So the only thing that I don't know except the vacant and occupied is E1 E2 में किसका 15 lakhs होने वाला है, right. Who will get 15 lakhs, who will have a quoted price of 15 lakhs. तो 15 lakhs quoted price. अच्छा, they said block YY में there is only one house which has got parking space, only one house which has got parking space. Okay, now if I look at E2 के लिए, E2 has at least one neighbor, right? Because E2 has got at least one neighbor here. In that case, I can never place E2 having a neighbor count of 0. That's never possible. Which means जो 15 लाख वाला स्टोरी है वो E2 के लिए तो डेफिनेटली नहीं आ सकता. वो आएगा तो सिर्फ E1 के लिए आएगा. तो सिर्फ E1 के लिए अगर आता है, means I also know this part that E1 will have quoted price of 15 lakhs and E1 has got a parking space. So no other house
in block YY can have a parking space? Because they have already mentioned that ब्लॉक वाई वाई में एक ही घर ऐसा है जिसमें पार्किंग स्पेस है. अब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, द ओनली इंफॉर्मेशन दैट वी डोंट नो इज F2 वेकेंट है या ऑक्यूपाइड है. आई डोंट नो दैट, राइट? एक्सेप्ट दैट आई थिंक आई हैव एवरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड. Now if we move on to the questions, first question we have already answered, no problem with that. Second question is, which of the following houses are definitely occupied? Definitely occupied, how many houses can we get? We can get B1, A2, C2. We have 3 houses already there. And we have F1, we have B2. We don't know about F2 yet. So we have to go option wise, right? जो भी ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन में दिया हुआ है B1, A1, D2 एंड F2. B1, A1 तो नहीं होगा, D2, जी हां D2 भी होगा, F2 के बारे में हमें पता नहीं है. These are the 4 options given, which means there are 2 possible options which are correct. This was one of the questions that they have mentioned last year, which was incorrect. Not incorrect, that was like there were 2 options which were coming correct. So B1 and D2, both of them are equally correct. Moving on to number 13, which of the following options best describes the number of vacant houses in R2? Number of vacant houses in row 2, I can see that this is 1, this is 1. I am pretty sure about these 2. तीसरे वाले के बारे में मुझे श्योरिटी नहीं है. So या तो 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है, depends. Which means I'll go with option B. What is the maximum possible quoted price for a vacant house in column E? Column E में एक vacant house का maximum quoted price कितना हो सकता है? तो obviously they are talking about E2. अब E2 में मुझे पता है उसका RAV value 1 है, no doubts about that. E2 में parking space नहीं है, so the base price has to be 10. And neighbor count. So if I have to maximize the price, I have to maximize the neighbor count also. Neighbor count उसका maximum हो सकता है 2, because in that case I'll consider D2 as a neighbor and F2 also as a neighbor. So in that case the maximum quoted price of this house will become 10 plus 5 into 1 plus 3 into 2. 6 plus 5, 11 plus 10, that is 21. So 21 lakhs can be the maximum quoted price of a house in column E. Last one, which house in block YY has got parking space? We already figured it out. Parking space सिर्फ एक ही घर में है and that is E1. So I'll mark option D as the answer.